Hello friends, welcome back to CCSP certified channel. Today I am uploading recording of 8 February. It was first class of domain 2 and domain 2 took 5 classes. So this is first class. Same way domain 1 took 7 classes. I have uploaded them. Few are made public. Domain 2 also I will upload all the classes and make few public so you can understand how I am teaching these concepts. And domain 2 is most important for the CCSP exam because it weightage is 20% is highest. So out of 150 question, if 20% weightage is domain 2, then you can expect around 30 questions from the domain 2 itself. So it's very important that domain 2 is you are good in the concept and domain 2 and you understand it well. So before I jump to the recording, I will discuss peace of mind, and before the peace of mind I will just discuss the new batches I'm starting according to peace of mind. So peace of mind is a promotional activity by the IC Square, and I start the batches according to the offers or the promotions given by IC Square. So next batch I'm starting for the CCSP exam. It will be a weekday batch from 21st March onward. It will go around 10th May till 10th May, 4 days a week from 9 a.m. to 10:30 a.m. IST, approx 36-hour classroom studies. Along with this, I will share your question bank, test paper, and my guidance. And I have made these batches flexible because these are for working professionals. They might have meetings, so I will record and share the recording. Same way, this is the recording from my classroom only, so I will share the recording to the participants of the batch, and I can adjust timing based on their needs. You can write me to enroll for this batch ccsp certified at gmail.com if you are interested. And all the if you are want to if you cannot join online class that online batches, you can still become a CSP certified by watching my online videos. This is one of the video that I'm uploading. You can I have uploaded all this on the CCSP certified channel with the classroom recording as a CCSP classroom recording. I will share the link. And before go to the domain 2 recording, I just cover the peace of mind quickly for you guys. There is a promotional activity going from IC Square. Name is peace of mind. You might be getting a different offer the time you are watching this recording, but the offer name will be same, peace of mind. So current offer going on for it is actually the second attempt, free second attempt, in case you are not able to qualify the first attempt. So current offer is saying that if you enroll by 15 March and give first attempt by 31st, you will get a second free attempt by 31st May. So similar offers IC Square gives in almost every alternate month. So this is March month offer going on. Next offer might be in end of April or May month. And if you want to get ready for these offers, better you enroll for any of these classes. So either you can write me at the CCSP certified at gmail.com to enroll for my batches, or you can ask for these recordings. So I have uploaded all the recordings. I can grant access to you with some nominal fees, and I will along with this I will give the question bank and the slides and the guidance also. So it weightage 20%. So approximate 25 से 30 क्वेश्चन this domain 2 से आते हैं. Very important topics and very easy to understand and learn also. So we'll cover this domain 2. There's a cloud data security, the whole data in the cloud, how to make it secure. This we work. So this domain has a 8 subdomain. Like previous domain, there was 5 modules. It has 8 modules. We will cover them in next 10-12 days. This domain 2. So we'll start with the module 1, which is cloud data concept. So cloud data concept has 3 subpart: cloud data lifecycle, data flows, and data dispersion. 3 very important concept, and at least 5 questions comes from the module 1 itself. So this is the most important slide, and it has 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps.
sorry. First step is create, second is store, third is use, fourth is share, fifth is archive, and sixth is destroy. So कुछ ही चीजें याद रखनी है, and this is one of them to remember. Along with the domain one, few items I have asked to remember. एक तो मैंने TCS वो Nautilus 9 बोला था, एक ये है जो याद रखना है, एंड जस्ट क्विक रिकेप. Nautilus 9 याद है क्या था Nautilus 9 में? Some two items were related to data. Data से कौन कौन से related थे? So याद रखो, data breach and data loss. Those were two items related to data in Nautilus 9. वो हम यहाँ cover करेंगे. How to handle those two in this domain 2. इसके अलावा कुछ और NIST के और ISO के कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड थे. एक था 800-145. वो किसके लिए था? NIST 800-145. NIST 800-145. That was the definition of cloud. It was very first. I love you से याद रख सकते हैं 143 से, but it was very starting point to start the slide. Same time ISO का था 177-188. इसके अलावा हमने Nautilus 9 जो याद रखना था, और एक ये है. अब इसमें डेटा के जितने भी डेटा के लाइफ साइकिल होते हैं उसको CSU सेट से याद रखा है मैंने. आप लोग जिस तरह से याद रखना चाहे, बट दिस इज CSUSAD. ये ऑर्डर भी पूछा जाता है. एक क्वेश्चन इसका ऑर्डर होता है, एक क्वेश्चन इसके बाकी चीजें जो हम कवर कर रहे हैं, पर एक क्वेश्चन इसकी मैचिंग का भी आता है. वो जो मेरे एग्जाम में आया था वो भी आई विल शो यू. फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट. द क्रिएशन इज जनरेशन ऑफ न्यू डिजिटल कंटेंट और द अल्टरेशन, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट आल्सो. सो क्रिएट का मतलब सिर्फ क्रिएट ही नहीं है, अल्टरेशन, अपडेशन एंड मॉडिफिकेशन भी है. वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द डेटा इज मॉडिफाइड, it is falling under which category? It is falling under create category only. There is no deletion here, correct? There is alteration, updating and modification of the existing content and creation of the new content. This part of the create. Next step is store. Storing is the act of committing the digital data to store, sort of storage repository, and typically occurs nearly simultaneously when creation happens. So storage is storing in the database, storing in the object storage, storing in the file. Anywhere the data is being stored, that can be used again. So this is not a storage. We have an archive also, but the storage is that a step that is normally after create, because when the data get created, it should get stored somewhere, and the stored is the step that just after the creation step, and that stored the data. The third one is data use. And one more thing, the creation of the data is part of the create. Update is also there. Classification of the data is also part of create only, though it is not mentioned. Any data classification, like is a critical data, it is a business important data, it is sensitive data, all the classification happens in the create step only. One question they ask, again I mentioned this sequence and the each term. So we'll see few questions later. The creation, updations, and the classification is part of create. Storing a data, when they said that the data is being stored in the database, which stage? It's a store stage. There's a use data is used, view, process, or otherwise used in some sort of activity, not including modification. Very important. If the data is modified, it is a create category. If data is being used but it is not being deleted or not being modified, it is a use category. Okay. Even view is also use. So when data is being viewed, it is a use category. Okay. The share, information is made accessible to others, such as between users to computers and partners. When the sharing happens, there's a share category. This quite straightforward. Use and create is quite confusing, and you get a difficulty to get the answer. Same way, store and archive. Data leaves active use and enters long-term storage. So there is no active use of data.
You cannot run any query of the data. You cannot find any logic. If you run a query on the data, which category it is? That if we run a query, Again, I said Query data. then use. Use, correct. in If use, you right? modify data, which category it is? Create. 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 And archive is data lives active use and enters the long-term storage. So there is no update, create, modify, read. Archive is a long-term storage encrypted and live in the long-term storage. We will see what are the long-term storage we have. But archive is a category there. And the destroy, data is permanently destroyed using physical or digital means. We have seen the crypto shading when we intentionally delete the keys or physically we delete the hard disk. So when data is permanently destroyed, it is fall in the destroy category. एक बार इसको याद कर लो क्योंकि नेक्स्ट जितने भी स्लाइड आएगी अब उसको इसी ऑर्डर में आएगी. So we'll see them. Quickly read this one more time. राइट. सो रवि, जैसे मतलब इसका प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से अगर देखें तो अपन कहाँ पे लाइफ साइकिल को अपन मैप कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा? वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा. पर ये एक डेटा का एक लाइफ साइकिल होता है क्लाउड पे. विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि डेटा का प्रैक्टिकलिटी ये है टोपोलॉजीज. इसका मैप कैसा होता है. सो क्लाउड जितने भी होस्टिंग सर्विसेज होती है क्लाउड की और जो ये एक्सेस डिवाइसेस होते हैं और ये जितने भी डेटा इसके बीच में फ्लो होता है, इनके बीच में एक्सचेंज होता है, वो इसी इन्हीं डायग्राम में फ्लो होता है कि जब वो डेटा क्रिएट होता है, यदि मैंने एक्सेस किया कुछ डेटा क्रिएट हुआ, कहीं जाके स्टोर होता है, उसका यूज होता है, शेयर होता है, आर्काइव होता है या डिस्ट्रॉय होता है. और जरूरी नहीं कि हर एक कैटेगरी यूज हो हर डेटा में, पर यदि वो सीक्वेंस होगा तो इसी सीक्वेंस में डेटा जाता है. और जितना भी डेटा क्लासिफिकेशन और डेटा मैनेजमेंट टूल होते हैं क्लाउड पे, डीएलपी जैसे ना, डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए डीएलपी यूज होता है, वो सब टूल या कास भी यूज होता है. वो सब यूज इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं और डेटा के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेटा को डिसाइड करते हैं कि वो स्टोर होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्या होगा. तो मल्टीपल डिवाइस डेटा क्रिएशन करते हैं और डीएलपी जैसे टूल है, कास्पी टूल को डेटा लाइफसाइकिल मैनेजमेंट इस तरह से होता है. वो हम आगे और देखेंगे इन स्लाइड्स में. बट दिस इज द वे डेटा बीइंग यूज्ड इन द क्लाउड. ओके. ओके. एंड वी गो टू नेक्स्ट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा. सो दे आर थ्री ऑपरेशन. वन इज एक्सेस, वन इज प्रोसेस, वन इज स्टोर. ओके. एंड दे आर सिक्स: क्रिएट, स्टोर, यूज, शेयर, आर्काइव एंड डिस्ट्रॉय, जो हमने अभी देखा. एक्सेस स्टेप है वो क्रिएट में भी डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, स्टोर करने में भी एक्सेस करना पड़ेगा, यूज करने में भी एक्सेस करना पड़ेगा, शेयर में भी एक्सेस करना पड़ेगा, आर्काइव करने में भी, डिस्ट्रॉय करने में भी. एक्सेस वो डेटा स्टेप है जो सभी का पार्ट होगी, इनिशियल स्टेप. डेटा की प्रोसेसिंग जो होगी वो सिर्फ क्रिएट में हो सकती है. स्टोर होने के बाद कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, यूज में हो सकती है. बाकी में केस में भी कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो सकती. डेटा स्टोर होगा या तो स्टोरेज में, आर्काइव में. तो स्टोर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो स्टोर और आर्काइव में होगा. एक्सेस भी है वो सब में होगा. प्रोसेसिंग में सिर्फ क्रिएट और यूज में वो डेटा प्रोसेसिंग में जा सकता है ना. तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है. जैसे कैसे क्वेश्चन आता है, पहले ये क्वेश्चन था जो मुझे एग्जाम में मिला था, और एक ये क्वेश्चन थे जो कि बाकी लोगों को मिले थे, हमने डिस्कस किए थे तब. सबसे पहली बात है कि हम देखते हैं डेटा टू बी मूव्ड इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज. जब भी डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जाएगा तो कौन सी स्टेप में जाएगा, वो आर्काइव स्टेप में जाएगा, है ना. डेटा की रिटेंशन पॉलिसी पे अभी होता है. डेटा की रिटेंशन पॉलिसी किस स्टेप में एप्लीकेबल हो सकती है, इन सब में से कौन सी स्टेप में डेटा रिटेंशन पॉलिसी हो सकती है. तो आर्काइव में, क्योंकि डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जा रहा है तो डेटा की क्या रिटेंशन होनी चाहिए, डेटा कितने टाइम तक रिटेन होना चाहिए, दैट विल बी पार्ट ऑफ द आर्काइव इट. करेक्ट. एंड विच इज द डेटा टर्म दैट इज एप्लीकेबल इन द ऑल स्टेप. एक्सिस जो भी है, ये भी दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन आल्सो. एक्सिस इज द पार्ट विच इज एप्लीकेबल इन द ऑल द डेटा. And there is a mapping question was there. I said there will be three mapping questions. When there is a events get logged, it is a create step because the data is getting created when the events get logged. When it is committed and saved somewhere, it is a store stage. When it is processed and view, it is a use state. When the access control list ACL policies are applied, it is a share stage. So before sharing, we apply the ACLs, who can access, what level of data access we have. When the snapshots are taking, those are for the backup purpose, they are the archive purpose.
This is the archive step, and the crypto shading is the destroy step. So it was given in the left side, right side. This whole data dump was given, and you have to map this between left and right. Is it clear? So far so good. कोई doubt है? हाँ नहीं है। कई इसमें कई क्वेश्चन आएंगे। डेटा रिटेंशन के लिए मेरे को बस एक लग रहा था कि आर्काइव के अलावा मतलब डिस्ट्रॉय में तो डिस्ट्रॉय करना है, ओके, आर्काइव में ही वो डिफाइन होगी। हाँ, डेटा रिटेंशन तभी होगा कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितने टाइम तक डेटा रखना है। दैट्स व्हाई द डेटा रिटेंशन का वहाँ यूज है, और वो आर्काइव का ही पार्ट है। ओके। ये क्वेश्चन मुझे एक और आया था, ट्राई करो, इसका आंसर करो। स्टोर हाँ, डेटा ऐसे कौन सी स्टेप है जहां इसको मॉडिफाई किया जा सकता है ना? इन विच फेज ऑफ द क्लाउड डेटा साइकिल वुड बी डेटा विल कमिट टू द स्टेट वेयर इट कैन बी मॉडिफाई। तो हमने अपडेट तो कोई स्टेप देखी ही नहीं, तो जो स्टेप हाँ देखी नहीं वो तो वैसे ही कट गया है ना। एक आर्काइव बचा, आर्काइव में तो वहां हमने पूछा कि उसके बाद वो मॉडिफाई हो ही नहीं सकती, दैट इज समथिंग, वो आर्काइव में आ गया डिस्टोर से जस्ट पहले। स्टोर एंड शेयर, शेयर वाले स्टेप में हम शेयर करते हैं, वो डेटा मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। स्टोर के बाद ही हम, और स्टोर के पहले भी हम डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टोर वो स्टेप है, वहाँ डेटा यूज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, अपडेट हो सकता है, ठीक है। सो दिस वे दे आस्क दिस, को इस पे क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई आपको डेटा रिटेंशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, ठीक है। और इतनी 3 क्वेश्चन है, एक तो इसका साइकिल पूछ लिया था मुझे, क्रिएट अपडेट यूज का, और एक और चीज एज आई मेंशन कि ये सब स्टेप जरूरी नहीं कि हर बार फॉलो हो। कई बार वो क्रिएट स्टोर दे दे, यूज ना दे, शेयर आर्काइव डिस्ट्रॉय दे दे, तब भी सीक्वेंस वही चलेगा। बीच में कोई और चीज भी डाल दे तब भी सीक्वेंस यही चलेगा। सीक्वेंस वाले कीवर्ड आपको कैच करने हैं जब भी आपको आंसर देना है। देयर विल बी 2 क्वेश्चन अगेन आई मेंशन, इससे अकेले से 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन तो इस स्लाइड से जो पहली वाली था, एक इनसे होगा, एक मैचिंग का क्वेश्चन होगा। अप्रोक्सीमेट 3 क्वेश्चन मुझे थे, दिस वाज माय एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा डिस्पर्सन। So we have seen that we have a multiple availability zone. We are doing a BC and DR setup with one cloud serving the business continuity, one doing the disaster recovery. Then how the data will be flown between two availability zone or two regions or two setups, because the data should be available for the other setup to work fine or other setup to work is a failover or the load balancing systems. So data dispersion is a technique which is being used in cloud for the data to be dispersed. So the data dispersion techniques are used to provide high availability assurance and performance when the write data into cloud based storage systems. Okay. The underlying architecture of this technique involves use of eraser. So this is also one of the very important keyword, eraser coding. They ask what is eraser coding, where it is being used. It is used in the data dispersions. How it is used, we'll see in the next slide. But the architecture technology, how the data dispersion works, is based on the eraser encoding, and which chunks a data object into small segments, hold it, because data is in the large object, which first converted into small segments. Each segment is encrypted, cut into slices, and dispersed across an organization's network to reside on different hard drives and servers for the high availability of the data. So we'll see in the next slide how this eraser coding works. तो रवि, हाई अवेलेबिलिटी इज सम, मतलब वो राइट करते समय भी हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत पड़ती है? किस समय? मतलब वो जो डेटा डिस्पर्जन है, इट इज द, मतलब हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ द डेटा, राइट? नो, सो जैसे डेटा एक एरिया पे डेटा है, इफ दैट हाँ। गेट लॉस्ट, you will lose all the data, and data is very important in terms of customers data is there. So how the cloud system makes sure the data
does not get lost because it is reside on the one systems. So it reside on the multiple systems. How it reside in the multiple systems? इरेजर कोडिंग के थ्रू होता है, वो टेक्निक्स हम जो पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि क्लाउड में डेटा आपको पता नहीं कहाँ है, कहाँ स्टोर है। आप एक जगह से डिलीट कर दो तो दूसरी जगह डिलीट हो ना हो, इसीलिए इंक्रिप्शन यूज होता है कि ताकि डेटा सब जगह से गायब हो जाए, अनयूजेबल हो जाए। पर क्लाउड अपना डेटा कैसे स्टोर करता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के स्टोरेज, मान लो एक रीजन में आपका डेटा रखा है कस्टमर का, वो ओके। रीजन में ही करप्ट हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, हार्ड डिस्क फेलियर हो जाए, आग लग जाए, होल कस्टमर डेटा नहीं जाए ना, उसके लिए ऐसी टेक्निक्स ही होती है। और ये रेट पड़ा होगा RAID, हाँ इसी रेट। का क्लाउड वर्जन है इरेजर, इरेजर कोडिंग। ये पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट कौन सा होता है, वो रेड होता है। तो डेटा डिस्पर्जन का एक कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ डेटा डिस्पर्जन, दैट इज रेड, दैट हार्ड डिस्क का हमने टाइप पढ़ा होगा। सो क्लाउड में ये टेक्निक, हार्ड डिस्क तो कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे, यहाँ डेटा डिस्पर्जन है। एंड मैं इसको अभी समझाते हैं, फिर इसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिकली एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसके थ्रू क्या होता है कि is a technique that uses mathematical functions to transfer a set of data into form that include residencies in a way that allow a original data to be recreated from a subset of a redundant pieces. So जब भी कभी डेटा लॉस भी हो गया, जैसे डेटा फ्रेगमेंट है, एक इसके 5 पीसेस चंक की है, और जब हम इसको, ये पेरिटी चंक्स है, इसकी ये पेरिटी बिट्स चेक करने के लिए जो अपन ने बोला था कि अपन को डेटा जो है वो उसका हम निकालते हैं, MD5 चेकसम निकालते हैं, वैसे पेरिटी चेक होता है। पेरिटी चंक्स होता है जो डेटा की, जो डेटा स्टोर है वो है, डेटा स्टोर है वो नॉन करप्टेड है डेटा, उनका एक पेरिटी चेक्स होता है। तो उनके साथ M+N चंक्स बनाते हैं मिलके, और इसको इसको एक मल्टीपल स्टोर ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डालते हैं। तो जैसे इरेजर इनकोडिंग इज स्पेसिफिक दैट M+M फॉर्मेट, लेट से 10 मेरा डेटा था, 6 एक इसका रिडंडेंसी डेटा विद पेरिटी चंक्स बनाया अपन ने, और इसके बाद 16 जो है, इसमें से कोई से भी 10 रिकवर हो जाए, सो दैट एनी 10 ऑफ दोस कैन बी रिकवर, द होल डेटा कैन बी रिकवर। तो मैंने जो मेरा जो 10 डेटा था, मैंने 16 प्लेसेस में डाल दिया, इन 16 प्लेसेस में यदि 10 भी रिकवर हो जाएंगे तो मेरा होल डेटा रिकवर हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। तो एम डेटा M+N चंक्स में बांट के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि एटलीस्ट यदि M भी रिकवर हो जाए तो हमारा पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। So if the drives are on different appliances, the protection includes appliances failure. So 6 appliances box could go down without stopping operations. तो 6 ऑब्जेक्ट स्टोरेज डाउन भी हो जाए तब भी 10 ऑब्जेक्ट स्टोरेज मेरा डेटा ले आएंगे। यही इरेजर कोडिंग का कंसेप्ट है। आई होप ये क्लियर। एग्जाम्पल दिया है 10 और 6, एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं कि 4 का अंतर हो। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि इस तरह से बांटा जाता है, जितना ज्यादा आपको डेटा क्रिटिकल है उतने ज्यादा आपको एन रखे जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फेलियर पे आपका डेटा लॉस हो, कम फेलियर पे आपका डेटा फिर भी लॉस ना हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब रेड वाला जो पढ़ा अपन ने, वो रेड और इरेजर कोडिंग का वही दिखाया अपन ने, सेम सिमिलर कंसेप्ट है। रेड और इरेजर कोडिंग एग्जैक्टली सेम। इसमें भी डेटा क्या होता है कि डिफरेंट चंक्स में बनाया जाता है और डिफरेंट हार्ड डिस्क में रखा जाता है, ताकि डेटा रिकवर हो जाए। इवन दो 1 और 2 हार्ड डिस्क का फेलियर भी हो तो डेटा हो। तो इसमें भी M और N डेटा का कंसेप्ट था। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ इरोजन कोडिंग में है। वहां पे इसको इसको बोलते थे पेरिटी बिट बोलते हैं इसको, पेरिटिस। यहाँ पे इसको इरेजन कोडिंग ही बोलते हैं। और ये कंपैरिजन के सवाल एक दो आते हैं कि इरेजन कोडिंग किसके कंपैरिजन है, और वहां पे यदि ये पेरिटी बोला जाता है तो यहाँ पे क्या बोला जाता है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब भी यदि मान लो मेरा BC और DR दो सेटअप है, और यदि मुझे अ, मेरा एक सेटअप डाउन हो गया तो मेरा सभी डेटा जो वहाँ पे है वो लॉस हो जाएगा। तो मुझे इमीडिएटली दूसरा सेटअप स्टार्ट करना है, मान लो DR सेटअप स्टार्ट करना है, तो डेटा रेप्लिकेशन में ही घंटों लग जाएंगे यदि DR सेटअप्स में डेटा नहीं है। तो यदि डेटा BC और DR इसी इरोजन कोडिंग में सिंकअप में हो, डेटा डिस्पर्जन में हो,
तो इमीडिएटली वो दूसरा सेटअप उनके 10 चंक्स, लेट से एम चंक्स वहां पे अवेलेबल है, तो एम चंक से वो डेटा रिकवर होके वो सेटअप इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसको पढ़ेंगे अभी। तीन तरह के जो डीसी बीसीडीआर सेटअप होते हैं, विल रीड देम। जो एक होता है हॉट वाला, जिसमें इमीडिएटली डेटा रेप्लिकेटेड होता है, तो इमीडिएटली आपको स्टार्ट से करना हो कि बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस हो जो कि डाउन नहीं हो सकती, उनके लिए हम वार्म हॉट और कोल्ड तीन तरह के बीसीडीआर सेटअप में डेटा डिस्पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है उस डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए बिटवीन टू सेटअप्स। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस रवि रवि एक बार एम एन का एक बार ऑफिस से कॉन्सेप्ट समझाएंगे? एक्चुअली क्या होता है, ये एम और एम जैसे एग्जांपल दे रखा है। जैसे 10 मेरे पास डेटा ब्लॉक्स है ना, और 6 मेरे पास रिडंडेंसी है। तो मेरा जो डेटा है वो 16 डिफरेंट ड्राइव्स में जाके स्टोर होगा, कि इन 16 में से कोई से भी 10 रिकवर हो जाए तो मेरा डेटा रिकवर हो जाएगा। Are you getting my point? So erasing coordinate is specified in a m plus m format. तो जैसे आप मेरे हर एक रीजन में लेट से 3 स्टोरेज डिवाइस मेरे एक रीजन में, 3 दूसरे में, 3 तीसरे तो में। रवि रवि ये जो एम है जो डेटा ब्लॉक से वो हम डिसाइड करते हैं, राइट? ये हाँ, ये डिसाइड करेंगे कितना आपको क्रिटिकल डेटा है। यदि आपको बहुत क्रिटिकल डेटा है जो लॉस्ट ही नहीं हो, तो आप एन ऑलमोस्ट इक्वल टू एम रखेंगे, और इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान लो जैसे मेरा डेटा मेरा 10, अभी अभी मैं 10 चाहिए मुझे रिकवरी के लिए, कई बार हो सकता है मुझे 5 भी हो तो रिकवरी हो जाए, 15 भी लॉस्ट पे मैं चल जाऊं। तो जब मुझे डेटा की क्रिटिकलिटी कितनी है, उसी हिसाब से एम और एन की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम जिससे डिस्क जितने रिकवरी के लिए चाहिए वो कम से कम होगी, ताकि ज्यादा से सो ज्यादा। बेसिकली जो एन है, दीज आर द पैरिटी डिस्क। दिस आर द पेरिटी बिट्स, दिस आर द वन विच वी आर डिसाइडिंग कि कितने चंक्स ऑफ द डेटा हमको एटलीस्ट रिकवर कर लेना है, और उसी हिसाब से सो हम। बेसिकली रवि, जो रेड का जो कॉन्सेप्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो पैरिटी डिस्क होती है उस पे हमें राइट की परमिशन नहीं होती, दैट सिस्टम ऑटोमेटिकली राइट्स ऑन दोज डिस्क, राइट? Correct, हाँ। सो हाँ, ताकि अलग से कोई उनको टच नहीं कर पाए, अलग से उनको करप्ट नहीं कर पाए। तो एक्चुअली वो रीजन ये है ना कि आपको सिर्फ उसका उसका रेप्लिका बनाया गया है, और रेप्लिका मिरर रेप्लिका होती है। वो मिरर रेप्लिका आपको कोई और राइट नहीं कर सके, जो रीड सिस्टम सोर्स सिस्टम है बस वही मैनेज कर पाए उसको। तो बेसिकली अगर एम मेरे पास 5 है और अगर मैंने एन को 2 डिसाइड कर रखा है, तो मेरे जो एम जो है उनका पूरा सेम टू सेम रेप्लिका उन 2 डिस्क में रिप्लिकेट होगा। करेक्ट, हाँ। और मुझे एटलीस्ट वो उन दो में से दो में से वो 2 मिल जाए, और 5 में से 3 मिल जाए, तो टोटल 5 भी मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, गॉट इट। मतलब पैरिटी वाले डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी अपने पास रिमेनिंग 5 रहेंगी जिससे अपन डेटा रिकवर कर सकते हैं। हाँ, अपन को एम पॉसिबल डिसाइड करते उतना एम अपने को कहीं से मिल जाए, चाहे है। पेरेटिव से मिल जाए कि मेन से मिल जाए, पर एटलीस्ट मेरा डेटा रिकवर के लिए उतना मिनिमम एम डिसाइड कर ले तो डेटा रिकवर हो जाएगा। और रेड में ये पैरिटी फिक्स रहती है, और इसमें पैरिटी कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आवर ये- डेटा क्रिटिकलिटी। हाँ, तो वो कार्तिक, उतना। रेड में तो आई गेस कार्तिक रेड में तो आई गेस 6 नंबर की जो डिस्क होती है दैट इज द पैरिटी डिस्क। हाँ, पेरेटिव डिस्क होती है, हाँ 5/6 होती है, पर यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक एन नंबर ऑफ रख सकते हैं अपन। हाँ। बाकी इसमें इस तरह का सवाल नहीं आता कि आप कितना होगा एन डेटा एन। मैथमेटिकली ऑप्शन वो कंसेप्ट पूछते हैं कि डेटा डिस्पर्सन किससे रिलेटेड है, और हाई अवेलेबिलिटी के लिए डेटा रेप्लिकेशंस के लिए क्या कंसेप्ट यूज होता है, वो देखते हैं। अब सेकंड कंसेप्ट है कि क्लाउड स्टोरेज। हमारे इन द क्लाउड व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज वी हैव, एंड हाउ एंड वी विल डिस्कस देम, द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एंड द थ्रेट्स अवेलेबल टू देम। So, infrastructure as a service storage types. So we do have a 2 type of storage in the infrastructure as a service. One is volume storage, one is object storage. This is also very important concept. At least यहाँ से भी एक क्वेश्चन वॉल्यूम स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज का आता ही आता है। ठीक है, तो जो अभी पढ़ा भी हो, कभी नहीं होता, अभी पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट वॉल्यूम स्टोरेज फिक्स साइज स्टोरेज होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक बकेट टाइप का होता है, इनफाइनाइट स्टोरेज। तो हम पढ़ते हैं इनको अभी में। सो वॉल्यूम स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम स्टोरेज होता है कि जैसे एक दो तरह के होते हैं, बूट वॉल्यूम एंड ब्लॉक वॉल्यूम्स। वॉल्यूम स्टोरेज के टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज का ऐसा कोई टाइप नहीं है, इसके 2 टाइप होते हैं, बूट वॉल्यूम एंड ब्लॉक वॉल्यूम्स। जितने भी वीएम्स होते हैं, इनके पास एक बूट मेमोरी, बूट स्टोरेज होना चाहिए, जहाँ ये अपना
बूट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करके कुछ परफॉर्म कर सके। तो वो होता है बूट स्टोरेज का पार्ट, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। बाकी जो ब्लॉक स्टोरेज होता है वो उसी तरह का होता है कि इसमें हार्ड डिस्क अटैच कर रखी हो किसी वीएम के साथ, जैसे अपने कंप्यूटर के साथ कोई हार्ड डिस्क अटैच होती है, एक ब्लॉक ब्लॉक ऑफ द चंक ऑफ द मेमोरी अटैच होती है किसी लैपटॉप के साथ, वैसे ही ये वर्चुअली स्टोरेज जो अटैच होता है वीएम के साथ वो ब्लॉक स्टोरेज कहलाता है ना। तो बूट बूट से रिलेटेड है, जो हमने देखा है कि बूटिंग कंसेप्ट के लिए यूज होता है। बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिस्क एरिया होता है बूटिंग वाला, वैसे बूट स्टोरेज होता है। और ब्लॉक स्टोरेज जो हार्ड डिस्क एसोसिएटेड होता है इसमें, ठीक है। एक इनफाइनाइट स्टोरेज भी होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनकी लिमिट होती है ऑब्वियस, क्योंकि वो बूट वॉल्यूम भी एक फिक्स वीएम के साथ अटैच हो रहा है, ब्लॉक वॉल्यूम भी एक फिक्स हार्ड डिस्क जैसा अटैच हो रहा है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जोग्राफिकली सेम भी हो सकता है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए होता है ना। तो ये जैसे एक बकेट में है, इसको बकेट कंसेप्ट बोलते हैं। आप उसमें आप कई चीजें डाल सकते हो, उसकी कोई साइज डिसाइड नहीं है। तो ये भी एक पेड सर्विस होती है, परचेस की जाती है कई तरह के वीएम इमेजेस को, कई तरह के आर्काइव डेटा को, कई तरह की चीजें जहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स डाल सके, जिससे कि अलमारी में कई सारे ऑब्जेक्ट भर सकते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, दो इसकी साइज इनफाइनाइट होती है, आप कितना ही ऑब्जेक्ट भर सकते हो, देर इज नो लिमिट ऑन द साइज। बट वॉल्यूम स्टोरेज की एक फिक्स साइज होती है, स्टार्टिंग में डिसाइड होता है कि इतनी साइज का ही वॉल्यूम स्टोरेज है जो इससे अटैच है ना। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंस, इसमें वॉल्यूम स्टोरेज यूज होगा या ब्लॉक स्टोरेज होगा। ये ब्लॉक स्टोरेज का एग्जांपल है या वॉल्यूम स्टोरेज के लिए एग्जांपल है। तो फिक्स साइज फिक्स लिमिट होती है, वो वॉल्यूम स्टोरेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, जैसे एक हार्ड डिस्क होती है फिक्स साइज की लैपटॉप में एसोसिएटेड, वही वो होता है वॉल्यूम स्टोरेज। आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। In volume storage, customer is allocated a storage space within the cloud. This storage space is represented as an attached drive to user virtual machine. So ये वर्चुअल मशीन पे एक आपने हार्ड डिस्क अटैच कर दिया, वैसा ही ये कंसेप्ट है ये वॉल्यूम स्टोरेज। फॉर द कस्टमर पर्सपेक्टिव, द वर्चुअल ड्राइव परफॉर्म वेरी मच इन द सेम मैनर एज वुड बी ए फिजिकल ड्राइव अटैच। जैसे लैपटॉप में आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क अटैच होती है, वैसे की वैसे ही वॉल्यूम स्टोरेज अटैच होता है वर्चुअल मशीन के साथ। इज इट क्लियर? देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन देयर ऑफ द वॉल्यूम स्टोरेज, ठीक है। क्लियर। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये दोनों का अंतर एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इस पे हमेशा आता है। तो दो तीन क्वेश्चन तो आपके डेटा स्टोरेज पे आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज वॉल्यूम स्टोरेज पे आता है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज लाइक फाइल शेयर एक्सेस वी एपीआईज और वेब इंटरफेस, मैंने बताया डिफरेंट रीजन्स में हो सकते हैं, सेम जोग्राफिकल डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में हो सकते हैं। इनको एपीआईज के थ्रू एक्सेस होते हैं, इवन वीएम भी एक्सेस करता है एपीआई के थ्रू या वेब इंटरफेस के थ्रू होता है। डेटा स्टोर एज ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट टिपिकली इंक्लूड, इसमें हर एक डेटा के साथ तीन चीजें होती है, एक डेटा, एक मेटा डेटा, एक यूनिक आइडेंटिफायर। सो ईच ऑब्जेक्ट टिपिकली इंक्लूड डेटा इटसेल्फ, a variable amount of metadata, and the global unique identifier for locating that specific object across the entire storage space. आपका एक आइडेंटिफायर होगा जो आपको एग्जैक्टली यूनिक आइडेंटिफाई करेगा, आपका डेटा होगा और मेटा डेटा होगा। मेटा डेटा होता है कि डेटा के रिलेटेड डेटा, जैसे ये कब क्रिएट हुआ था, इसका ओनर कौन है, इसकी रिटेंशन पॉलिसी क्या है, वो सिर्फ डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में तीन चीजें होती है, किसमें हमेशा पूछता है कि यूनिक आइडेंटिफायर या फिर ऑब्जेक्ट आईडी किसका पार्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का होता है। वो ये चीज वॉल्यूम स्टोरेज में नहीं होती। देख क्वेश्चन आएगा अभी, देखिए। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम्स अलाउ रिटेंशन ऑफ मासिव अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये कोई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंस हमने देखा कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कई इनफाइनाइट स्पेस होता है, कई तरह का, जैसे एक शॉपिंग कार्ट में जाते हैं आप, या फिर फेसबुक में कई तरह के फोटोज, सॉन्ग्स, वीडियोस डाल सकते हो, या फिर आप मॉल्स में जाते हो, शॉपिंग कार्ट में आप टूथपेस्ट, आटा, घी, कई तरह के ऑब्जेक्ट एक साथ रख सकते हो, वो सब ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही होते हैं, टाइप के हैं। तो मल्टीपल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ऑफ मासिव अमाउंट कैन बी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ओके।
ऑब्जेक्ट स्टोरेज द वे टू स्टोर ओएस। हम यहाँ पे मैंने बताया कि ओएस वीएम इमेजेस, ओएस इमेजेस, वो सभी स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। इसके क्या बेनिफिट है, क्या इश्यूज है? अभी तक तो सो फार सो क्लियर। एक तो है कि यस गेट यस हाँ, बेनिफिट है कि आपके पास ग्रेटर डेटा है, उसके एनालिटिक्स आप कर सकते हो। लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज होता है। इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी, आई सेड कि इस पे कितना ही डेटा डाल सकते हो, डेटा बढ़ता भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पास इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी है। फास्टर डेटा रिट्रीवल होता है क्योंकि ये मल्टीपल डेटा जोन्स में डेटा रेप्लिकेटेड होता है हाई एबिलिटी के लिए, और वो इजीली फास्टर रिट्रीवल हो जाता है। कॉस्ट में रिडक्शन के लिए भी यूज होता है क्योंकि डेटा लार्ज लार्ज डेटा परचेस में बहुत रिलेटिवली प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो आर्काइव डेटा करने के लिए, वीएम इमेजेस को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डेटा आर्काइवर के लिए या फिर डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज कर सकते हैं। इश्यूज क्या है? अपने देखा कि डेटा डेटा कभी एक प्लेस पे स्टोर नहीं होता, उसको डिफरेंट चंक्स में बांट के डिफरेंट पेरिटीज बीट्स या जो डेटा डिस्पर्सन कंसेप्ट पढ़ा इसमें, उसको हमको डेटा प्रोपेगेट करना पड़ता है ताकि डेटा हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा रहे। तो वेन एवर वी अपडेट ए फाइल, we may need to wait until the changes is propagated to all the replicas before request return to the latest versions। जब भी उसमें कोई डेटा अपडेट होता है, वो सभी उसके उसके चेंजेस सभी उसके रेप्लिकास में जब तक अपडेट नहीं हो जाए, तब तक हमको उसको डेटा का यूज करने से पहले इसको वेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। एंड अनसुटेबल फॉर डेटा दैट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। यदि आप मेनी राइट ऑपरेशंस हो रहा है इसमें, तब वो उतने ही टाइम पे वापस रेप्लिका होगा उसका, फिर आप यूज कर पाओगे। तो हर बार एक लेटेंसी होगी, आप उसको वेरी फ्रिक्वेंट राइटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट स्टोरेज को। एंड इट इज ए गुड सॉल्यूशन फॉर डेटा दैट डज नॉट चेंज मच, बैकअप, आर्काइव, वीडियो, ऑडियो, वीएम इमेजेस, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। दिस वी हैव सीन। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन डेटा हैज ए, जब राइट वंस एंड रीड मेनी, यदि ये हो, उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट स्टोरेज सही है? तो राइट वंस एंड रीड मोनी, WRM मेरे पेपर में था। वोम के लिए क्या सही है? तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पे राइट फ्रिक्वेंटली राइट के लिए सुटेबल नहीं है ये, ठीक है। दिस वाज इन माय एग्जाम, विच इज द ऑब्जेक्ट, which storage is good for the write once read many? This is object storage. Okay, so far ओके। so तो रवि, जैसे मैंने मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा है ना, तो जैसे S3 बकेट यूज किया है, राइट? हाँ, दैट इज S3 ऑल्सो bucket ऑब्जेक्ट, है ऑब्जेक्ट ना? स्टोरेज है वो। हाँ, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। तो उसमें क्या होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आर्काइव्ड फाइल्स रखो, या मतलब जो फाइल बहुत ज्यादा यूज नहीं होती वो स्टोरेज करने के लिए वहां पे यूज करते हैं, हाँ राइट? हाँ तो उसमें उनका जो यूसेज मॉडल होता है ना, तो वो ऐसा देखा है मैंने कि उनको डेटा रीड करने में ना वहां से काफी टाइम लगता है। दैट इज व्हाई दे डोंट कीप देयर वेरी हाई फ्रीक्वेंट यूसेज डेटा, मतलब जो डेटा बार बार रीड करना होता है ना, वो रखते नहीं है ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। हाँ, लेकिन अपने ज्यादातर स्लाइड के हिसाब आर्काइव, से इसका हाँ हाँ, मतलब रिट्रीवल फास्टर है। रिट्रीवल फास्टर है, परंतु ये ज्यादातर बैकअप्स आर्काइव्स के लिए जिनको डेटा बहुत राइट मेनी टाइम्स राइट, फिर भी राइट तो बहुत ज्यादा स्लो है। रिट्रीवल तो फिर भी फास्टर है, रीड ऑपरेशंस। ज्यादातर बैकअप आर्काइव के लिए यूज होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज ना हो। जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज नहीं करते हैं, यू आर करेक्ट। पर ये सबसे रिलेटिवली चीपर होता है, जितने भी तुम स्टोरेज टाइप देखोगे ना, डेटाबेस और हाँ, चीप होता है, दैट्स इसीलिए ट्रू। वो कस्टमर यूज करता है। यदि वो S3 सबसे सस्ता सॉल्यूशन है, यदि आपको कोई भी चीज डालनी हो तो उसका एक इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि कितना ही डेटा डाल सकते हो, वो सबसे सस्ता है। पर आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूजेस के लिए उसको यूज नहीं करते, बैकअप्स आर्काइव के लिए ज्यादा यूज करते हो। यही इसका ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मेन पर्पस है। हाँ, मतलब ये फिर ये फास्टर डेटा रिट्रीवल कैसे उसका बेनिफिट हुआ, मतलब वो? फास्टर डेटा रिट्रीवल कंपेयर टू द राइट ऑपरेशन बोल रहा है वो। डेटा रिट्रीवल फास्ट होता है, राइट फिर भी स्लो होता है। हाँ, कंपैरेटिवली, राइट, हाँ हाँ, वो। कंपेरेटिवली, ठीक है। वो ओवरऑल नहीं है वो। ओके। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के भी कुछ हमने देखा कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको एक डेवलपर इन्वायरमेंट दिया जाता है। दे इंस्टॉल ओएस। अब वो ओएस दे दे इंस्टॉल दैट वेब लॉजिक और अपाचे और
any app server also, and then you deploy your application there. So what type of so this also being asked, that databases belongs to which type of services. They will give AS, PaaS, SaaS, and one restrictor. So we have to remember, in platform as a service, disk, database, and blob, these are being used as a platform as a service data storage type. Okay. So so far so good. So remember these three keywords, they are being used for the platform as a service storage. So we'll cover them. Disk. So this is a virtual disk that can be attached to a PaaS instance and may take the form of a volume or object storage depending on the CSP offering and consumer needs. So very important, this can be volume or object storage type both. This is virtually disk because there is no VM given to you. Correct? In past you have given just the application server. So the virtual disk you can attach with your instance, PaaS instance, that can be volume or object storage based on the CSP offering. And many PaaS offerings simply offer parameters for storage connect to the PaaS instance, such as speed and volume of input-output operation or data durability. The CSP provisions appropriate storage space based on the configuration specified the customers. So why they need a storage in the past, mainly only some input output operations, or for the data durabilities, they need this disk space for the storage in the past, and the CSP provide appropriate based on the configuration specified by the consumer, whether they need a volume storage or object storage, and what type of the operation they need, more read, more write. Based on this, the disk is being assigned. This is not a separate type of, it is a virtual disk. This can be this is more either a volume or a object storage, but is known as a disk in the PaaS storage type. Okay. Now comes to the second, this is most important, and database that we already know, that is for the structured data. First of thing, the sorry. Database, that is for structured data, that is both a storage type and the PaaS offering. It is also a storage type. The disk was not a storage type. Understand? The storage type was object storage, volume storage, and third type is database. Because this was actually object storage or the volume storage only, it is virtually known as a disk. Correct? Database is a real storage type, and this is a PaaS offering. Platform that can be delivered as a service include popular database software like AWS Relation Database, Microsoft Azure Database, Oracle Database. These are the famous databases attached to the PaaS services, and they are the specific data type in the PaaS. They are associated with the PaaS. So far, so good. The last type is blob. Any query you have, guys? No, no, Ravi. Okay. The last is blob. This for unstructured data, and we have seen that AWS Simple Storage Service S3, that is a specific blob type storage type, and that is above the object storage. So these are the often text file, images, or other binary files generated by application that allow users to generate free form content. This is similar to manually organizing file into a folder, such as word processing files. By this blob storage service such as AWS S3, Azure Blob Storage apply these concepts to large volume of the blob data and typically make it available to application or user via URL. So it is unstructured data, and it is large data, is similar like to object storage. It is built upon the object storage concept. So it is not a separate object type. So database एक separate storage type था, blob and disk उन्हीं पे बना हुआ है जो बेसिक स्टोरेज टाइप्स थे. ठीक है. और ये अगेन द ब्लॉब स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ये स्ट्रक्चर्ड डेटा जरूरी नहीं कि इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा ही हो. दिस इज मेनली फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि बैकअप या उसके लिए यूज होता है, आर्काइविंग के लिए. ठीक है. सो फार सो गुड.
सास Yes. एनी क्वेरी? सास का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सीडीएन है, जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो क्विकली दिस सास में आपको एज ए अलग से कुछ आपको मैनेज करने के लिए कस्टमर को अलग से कोई इंफ्रा दी नहीं जाती। वी डोंट मैनेज एनी इंफ्रा। सो सास में जो भी स्टोरेज टाइप होता है वो मैनेज तो सीएसपी करता है, but they are being used in the SaaS specifically. इनका क्या यूजर विल सी, तो use the web to deliver application they are managed by third party vendors and whose interface is accessed on the client. So SaaS utilize the following data storage. One is information storage management, second is content file storage, and third is content delivery network. There's CDN. This is very important. We'll discuss this. So अब पहले दो, सो इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैनेजमेंट, कंटेंट फाइल स्टोरेज मैनेजमेंट, वो सिर्फ ये वाला जो है सिर्फ डेटा स्टोर करता है, ये फाइल स्टोर करता है सास में। पर ये दोनों इतने फेमस नहीं, इतने यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सास का एज ए यूजर डेटा स्टोर करने का, फाइल स्टोर करने का एक टाइप है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सीडीएन है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो सबसे एक क्वेश्चन इसका आते ही आता है। वो कंसेप्ट हम देखते हैं सीडीएन का क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। तो इस लाइक जैसे अमेजन प्राइम एक्सेस क्या है, सो व्हेन यू एक्सेस नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, they are the content can be either from the central location, can be served through different users in India, America, China, जापान, या तो वो एक ही जगह से कंटेंट आए और सभी यूजर्स को एक्सेस करें। यदि विदाउट सीडीएन ये कंसेप्ट होता है तो जो जहाँ पे कंटेंट है उसके पास जो यूजर है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे, इजीली एक्सेस कर पाएंगे, पर जो यूजर बहुत दूर है जोग्राफिकली उसको लेटेंसी आएगी। और साथ में लेटेंसी के साथ इसका इंटरनेट का क्या नाम, द मोर डेटा विल ट्रेवल टू इंटरनेट and he will not able to access those services very easily if there is no CDN. CDN is a local caching concept. So when data or content is cached locally to the user, so if they are, even the content US के सर्वर में पड़ा है, if the Indian user are watching them, there is a CDN data storage type that Netflix will purchase from CSP in India, and that will only cache the content once user will view them. So यदि कोई यूजर ने कोई मूवी देखी है तो वो कंटेंट सीडीएन में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम एनी अदर यूजर विल वॉच देम, it will be served locally from that CDN itself. So it improve the bandwidth and delivery quality, and also ये कई जगह इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये लोकल लॉज अप्लाई कर सकते हैं। If any content which should not be viewed in the India, there is no need to apply any policy here. This content is accessible globally, but let's say Indian government has asked that this movie should not be viewed in India. The CDN can control and then can restrict that content to be visible in India, but rest of the area, this content can still be served and visible. Is it fine? So CDN associated with the SaaS-based service, it is data caching service. It is normally near geographical location for the high bandwidth and the quality delivery, and they are the services given by different vendors, which is of the CDN type. Hope it is clear, because there is one question from CDN itself. We'll cover few simple question. But Ravi, just one question on CDN. जैसे कोई सीडीएन, जैसे नेटफ्लिक्स ने कोई सीडीएन परचेज सर्विस यूज कर रहा है, राइट, अमेजन की, तो इसको भी क्या पे एज पर यूज ही होता है? मतलब जितना स्टोरेज करोगे वैसा इसका कैसा चार्ज रहता है? मतलब किस फॉर्मेट में रहता है, कुछ पता है क्या आपको उसका? इसका चार्ज का मॉडल तो मुझे नहीं पता, पर होना तो ये सभी जितने मॉडल है सब सर्विस है, मतलब कोई मतलब भी इसका स्टोरेज बेसिस पे चार्ज होता है कि मतलब कितना डेटा रख रहे हो आप कैश करके, इसका या मुझे कैसे चार्ज होता देखना पड़ेगा कि ये चार्जिंग मॉडल कैसे चलता है, क्योंकि अलग अलग सीएसपी पे अलग अलग लॉजिक होता होगा। पर कंसेप्ट सीडीएन का क्या है मुझे अभी इसका आइडिया है, मैं चार्ज भी देख सकता हूँ, विल सी दैट। पर कंटेंट अभी ये है कि जब तक कंटेंट का ये है कि लोकली कैशिंग कंटेंट होता है ये, कि कोई यूजर ने जब तक कि उसका, यदि इसका रिक्वेस्ट किया है, यदि सीडीएन पे पास नहीं है तो ओरिजिनल सर्वर के पास जाता है, रिस्पॉन्स को सेव कर लेता है, उसको डिलीवर कर देता है, नेक्स्ट टाइम अगला रिक्वेस्ट इसी के लिए
इसी रिसोर्स के लिए आता है तो यहीं से डिलीवर हो जाता है। तो कैशे डेटा से आता है, बहुत फास्ट होता है बिकॉज यहीं से लोकली आ गया, और इसके कंपेयर में बहुत फास्ट है। और यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई की जा सकती है। देयर इज ऑप्शन टू अप्लाई पॉलिसी बिकॉज दिस इज लोकल डेटा इज कमिंग, सर्वर स्टिल हैव द ओरिजिनल डेटा, लोकल पॉलिसीज कैन बी अप्लाइड। पर हाँ, पर इसकी कॉस्टिंग का क्या रहता है विल सी, मुझे इसका आइडिया नहीं है अभी, ठीक है, मैं देख के बता सकता हूँ उसको। पर कंसेप्ट वाइज होप दिस इज क्लियर बिकॉज ये कंसेप्ट एक पूछा जाता है सीडीएन का। एक 3 और तरह के स्टोरेज है एंड विल सी क्वेश्चन आंसर आफ्टर दिस। तो ये भी यूज होते हैं। अभी हमने देखा कि आस में हमने देखा ऑब्जेक्ट स्टोरेज और वॉल्यूम स्टोरेज देखा था। एक रो स्टोरेज भी यूज होता है, जहाँ रो हार्ड डिस्क लगा के आपको दे सकते हैं वो आस में। आस में एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी होता है आस बेस्ड सर्विस में। और आस में एक इंफीरियल स्टोरेज भी होता है। एक इंफीरियल कंप्यूटिंग पढ़ा था, वो कंसेप्ट पता है इंफीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है? व्हाट इज इंफीरियल कंप्यूटिंग? नहीं रवि, आई डोंट रिमेम्बर। 3 तरह की कंप्यूटिंग पढ़ती है, एज कंप्यूटिंग, इंफीरियल कंप्यूटिंग एंड कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है? एज कंप्यूटिंग और नियर एज। तो नियर, हाँ, वो आईओटी में था। एक इंफीरियर कंप्यूटिंग था कि ऑटो 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 स्केलिंग फीचर है हमारा, कि जब हमको कंप्यूटिंग पावर की जरूरत नहीं है तो वी विल डिलीट दी कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, दिस नोन एज इंफीरियर कंप्यूटिंग। सेम वे इंफीरियर स्टोरेज है, आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो स्टोरेज यूज किया जरूरत थी, देयर वाज a high demand of the data to be used process, and once the use complete we will delete those storage, उसका डेटा भी चला जाएगा, स्टोरेज चला जाएगा। those also being used in AAS instance as a inferior storage। so ये इसमें होता है। हमने देखा कि इंस्टेंस हम सेम कंसेप्ट है जो कि इंफीरियल कंप्यूटिंग में था। इंस्टेंस आर काइंड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट विच आर यूज फॉर रनिंग द यूजर प्रोसेस और एप्लीकेशन। कुछ टाइम के लिए जब इंफीरियल डिवाइसेस और स्टोरेज यूज किया जा रहा है, सून दे आर एप्लीकेशन बंद कर दी जाती है, या फिर दे आर बीइंग रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस रिसोर्सेज आर बीइंग डिलीटेड और रिलीज्ड, दिस इज नॉन एज इंफीरियल स्टोरेज। ये भी पूछा जाता है कि जब ऑटो स्केलिंग फीचर्स में कोई परमानेंटली आपको कोई, या तो आप ऑटो स्केलिंग के बाद आप परमानेंट उस स्टोरेज पर रहे, क्योंकि आपको स्केलिंग बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप वापस, आपका बैंडविड्थ कम हुआ, आपका यूजर्स कम हुआ, तो आप उतना रिसोर्सेज ना रखें, यू रिलीज देम। ऑटो स्केलिंग में ऑटो स्केलिंग की जस्ट ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट खत्म होते हैं, यू रिलीज दो रिसोर्सेज। सो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिलीज करते हैं तो इंफीरियल कंप्यूटिंग होता है, स्टोरेज रिलीज करते थे इंफीरियल स्टोरेज होता है वो, ठीक है। सो एक कंसेप्ट वाइज था। बाकी थ्रेड्स स्टोरेज टाइप में अनऑथराइज्ड यूज और एक्सेस है, लाइबिलिटी ड्यू टू रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के लिए, क्योंकि डेटा डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में जा रहा है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटेड डीडोस अटैक हमने देखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड डोस अटैक जो कि हमने नोडरेस 9 में देखा था। ई डोस, डी डोस पढ़ा था ना एक, ए डोस, ए डोस क्या था? असिंक्रोनाइज्ड डोस। रिवाइज करो इन स्लाइड्स को। असिंक्रोनाइज्ड डोस में क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ पेलोड भी आपको पूरा सिस्टम डाउन कर सकता है, वो डोस होता है। ई डोस होता है इकोनॉमिकली आपको डाउन करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड डोस ये मल्टीपल लोकेशन से डोस अटैक होता है, डी डोस अटैक होता है। तो वो सब पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट की स्टोरेज में करप्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा है, डेटा लीक एंड डेटा ब्रीच जो हमने नोटलेस 9 में देखा था, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ द मीडिया, मालवेयर अटैक्स। सो दोज आर दी थ्रेट्स टू द स्टोरेज टाइप्स। तो आज की थ्योरी का यही इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज हम दिस विल बी द लास्ट, विल डू द एक्टिविटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवाइज करना। ये एक्टिविटीज में हम कवर करते हैं क्विक क्वेश्चंस, but there will be 5 questions from this slides जो कि हमने एक्टिविटी 1 से पहले कवर किए। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो कैसे क्वेश्चन होंगे, विल सी देम। विल फर्स्ट गो टू अर्पित, देन विल गो टू कार्तिक। दिस टू यू What अर्पित। is correct? What is the correct order of phase of life? Crystal use archive, send, send. Create, store, use. It's B. या CSU सेड आपको याद रखना है
क्रिएट स्टोर यूज शेयर आर्काइव डिस्ट्रॉय। कई बार यहाँ अपडेट भी लिख देते हैं यूज की जगह। दे आर वेरी स्मार्ट बेवकूफ बनाने के लिए। तो देखना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली कीवर्ड पता हो उसका। डिस्ट्रॉय की जगह डिलीट लिख देते हैं। याद रखना है डिस्ट्रॉय डिलीट नहीं है। हाँ, वो आपने टेस्ट पेपर देखा ना, उसमें था ऐसा यही क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही था, उसमें डिलीट लिखा हुआ था लास्ट में। हाँ, तो दे विल मेक यू फुल लाइक दिस टू यू कार्तिक। क्रिएट। हाँ, क्लासिफिकेशन, क्रिएशन और अपडेशन सभी क्रिएट में ही आता है। ठीक है, दिस टू यू अर्पित। What phase of cloud security data enter long-term storage archive? हाँ, वो देखा था मैं, आर्काइव का देखा था ना। दिस टू यू अर्पित कार्तिक। कौन सा क्रिएट का केस नहीं है? मॉडिफाइंग मेटा डेटा हम्म या इम्पोर्टेंट डेटा। मेटा डेटा जो होता है डेटा के बारे में डेटा होता है, वो डेटा रिलेटेड नहीं है। ये सब डेटा रिलेटेड है हाँ, मॉडिफाइंग मेटा डेटा यही आंसर है। इम्पोर्टेंट डेटा मेरे को और मॉडिफाइंग मेटा डेटा, इन दो में कंफ्यूजन था। डेटा का ये इंपोर्ट हो, क्रिएट हो, अपडेट हो, क्लासिफिकेशन हो, वो सब क्रिएट का ही पार्ट है। ओके। दिस टू यू अर्पित। With the cloud service category, where the cloud customer provides application from which to deploy their code and services, which storage type are most likely to be available to them. कीवर्ड याद रखना है, ये समझना है इसको क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। Full किसमें कोड और सर्विस डिप्लॉय करते हैं हम। volume and object. वॉल्यूम और टास्क का था। हम किसमें कोड एंड सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, किसमें अपना कोड लिखते हैं। प्लेटफॉर्म है ना, पास में। Platform पास में लिखते हैं, हाँ, पास में पास में लिखते हैं, हमारे right? पास कौन कौन से वो होते हैं। Volume and database. वॉल्यूम और डेटाबेस, वॉल्यूम तो हुई ना। स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड। हमारे पास एक Structured. स्ट्रक्चर टाइप का था, वो डेटाबेस था। एक अनस्ट्रक्चर टाइप का था, वो ब्लॉक था। सो तो हमको ये पता होना चाहिए कि पहले किसका हमारा कैटेगरी है, और उसके लिए ये वॉल्यूम आ गया तो ये कट गया ऑप्शन, वॉल्यूम आ गया ऑप्शन कट गया। हायरार्की तो हमने पढ़ा ही नहीं, एक स्ट्रक्चर एक अनस्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा के भी देते हैं। दिस टू यू कार्तिक। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आईडी में पता तीन चीजें होती है, डेटा, मेटा डेटा और एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। वो ऑब्जेक्ट आईडी भी लिख दिया, वैसे इसने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आईडी लिख दिया तो वो ज़्यादा क्लियर हो गया। पर डिस्क्रिप्टर लिख सकते हैं, वो ओपेक हैंडलर लिख सकते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। तो वो सिर्फ एक ही चीज में होता है, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में होता है। दिस टू यू अर्पित। Your company is researching different cloud data aggregated data. As a result, the company wants to ensure it has control over fine. Cloud data. As a result, the company wants to ensure control over the data that is stored in defined jurisdiction. Which storage type would make meeting the business requirement most challenging? It's a C long-term storage. लॉन्ग टर्म स्टोरेज तो हमने देखा था कि हम सिर्फ डेटा फील्ड। सेव करने के लिए। हमने जो सीडीएन देखा था कंसेप्ट, सीडीएन कंसेप्ट ये देखा था कि ये सीडीएन में डेटा ज्योग्राफिकली नियर टू द यूजर होता है ना। जो ज्योग्राफिकली यूजर होता है वहां पे, मान लो यूजर मेरा यूएस में है, मेरा सीडीएन सिस्टम इसके पास होगा तो मैं यूएस के जुरिडिक्शन में चला जाऊंगा।
मेरा कंट्रोल ओवर द डेटा एंड द जुरिडिक्शन मेरा नहीं होगा, CDN जहाँ पे होगा उसका वहाँ होगा। तो CDN इज हाई पोटेंशियल ऑफ द जुरिडिक्शन इश्यूज एंड लीगल इश्यूज, वहाँ पे CDN में ही है वो। तो CDN जो पढ़ा था उसका ये एक यूज केस है कि CDN लोकल टू द यूजर होता है, कैशिंग नियर द यूजर होता है, परंतु वो है कि उसके जुरिडिक्शन में आता है, उस जोग्राफिकल लोकेशन पे डेटा होता है, वहां पे उसके लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहे कि ऐसा लॉज रखना पड़ेगा तो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप इंडियन गवर्नमेंट के सेट के आपको आपको पाकिस्तानी मूवीज नहीं दिखानी है, अ, तो आपके पास आपका कंट्रोल नहीं है। दिस इज इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल। इफ your CDN is in India, you have to control and remove the content which is not the government want. Okay, this to you, Karthik. ए ऑप्शन ही दिख रहा है तो। मल्टीमीडिया टेक्स्ट जो कंटेंट है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बाकी सब तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो डेटाबेस में स्टोर हो सकता है। दिस इज टू यू, अर्पित। Storage content metadata that allows easy access from विच कंटेंट मेटाडेटा याद रखना। metadata. It's a C volume storage. हमने पढ़ा स्टोरेज में मेटाडेटा नहीं होता, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में 3 चीज होती है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो फिर से कट गए। अब ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम, वॉल्यूम ने बताया था कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में 3 चीजें होती है, मेटा डेटा, डेटा मेटाडेटा और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। वॉल्यूम में वो सब चीज नहीं होती। Right. I forgot. You eliminate the answer this way, okay? ठीक है, दिस टू यू, कार्तिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, डेटा क्यों स्लो होता है, राइट ऑपरेशंस, डेटा अवेलेबिलिटी के लिए जो होता है। Most important factor impacting data availability. Data consistency occurs only after A option. करेक्ट, डेटा कंसिस्टेंसी तभी मिल पाएगी जब डेटा सभी जगह रेप्लिकेटेड हो जाएगा, अदरवाइज डेटा तब तक इनकंसिस्टेंस होगा। डेटा करप्शन तो होता ही नहीं, डेटा लॉस भी नहीं होता, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होता। डेटा कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है कि हर जगह रेप्लिकेटेड हो, वो हाई अवेलेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। दिस गुड, दिस टू यू, अर्पित। Cloud deployment use different type of storage from traditional data centers. Many types of software platforms for deploying applications and configuration. Which of the following is not the storage type used within a cloud environment? Cloud environment is not a storage type. It's structured. See. स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा ना, डेटाबेस स्ट्रक्चर टाइप का होता है। Right, database. It's a Docker. डॉकर तो कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो स्टोरेज टाइप नहीं है। Right. ओके, दिस टू यू, कार्तिक। CDN. CDN करेक्ट, हमने देखा कि CDN को यूज करके वो लोकल कैशिंग यूज करके डेटा सर्व कर सकती है। दिस टू यू, अर्पित। What is a form of cloud data production where data is separated across multiple storage devices locations similar to RAID? It's a B data dispersion. इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेटा डिस्पर्जन क्या है या फिर रेट के कंपैरिजन में क्या है,
या फिर क्रिप्टो वो इरेजर कोडिंग किस में यूज होता है? दिस टू यू कार्तिक। A option. एक ऑप्शन कैसे कार्तिक? Protecting confidentiality against external. Okay. कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्शन यूज करना पड़ेगा। तो वो यूज हो सकता है यदि एक्सटर्नल स्टोरेज में अटैक होता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड ही होता है डेटा। तो डेटा डिस्पर्सन वो काम कर सकता है। C option then. सी ऑप्शन भी नहीं है। इसका क्या रीजन है कि जैसे मान लो आपका डेटा, मान लो रिलायंस है ना। जैसे अडानी है, अडानी का कुछ डेटा, कुछ पेरिटी बिट्स इंडिया में है, कुछ चाइना में है, कुछ जापान में है, कुछ रशिया में है। इनमें से यदि एम बिट्स भी रिकवर हो जाती है तो पूरा डेटा रिकवर हो जाता है। तो मान लो चाइनीज गवर्नमेंट उनको, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनका जो डेटा चाइना में है उसको सीज कर लेती। वो पढ़ तो नहीं पाएगी जब तक इंक्रिप्शन है, और डेटा सीज कर लिया, आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते मान लो, या डेटा डेटा डिलीट कर दिया उन्होंने चाइना सर्वर से आपका, स्टिल आपके पास डेटा है जो कि डिफरेंट हाँ, अवेलेबल है। आप right, right, भी right. आपका डेटा लॉस नहीं होगा। परंतु यदि C आपने option. आपने डेटा डिलीट ही कर दिया, सो Right, बिकॉज then that cannot be recovered. डिस्कशन हमेशा क्या है, एक्सीडेंटल लॉस एक्सीडेंटल डिलीट को टेक केयर करता है। पर जब मैंने मैन्युअली जाया शिफ्ट डिलीट कर दिया, वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपने इंटेंशनली डिलीट किया या आपने की लॉस कर दी इंटेंशनली। तो वो डेटा डिस्पर्सन उसमें कहीं मदद नहीं कर सकता आपको, ठीक है। Right. Okay, हाँ, makes sense. दिस टू यू अर्पित। During which phase of cloud data lifecycle is possible for classification of the data to change its a create? ठीक है, वो तो क्लासिफिकेशन जब डेटा होगा वो क्रिएट में होगा। Right. ये था आज के लिए। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 3 है, कल पढ़ेंगे। आई विल शेयर दिस स्लाइड, वहाँ पे तीनों टाइप की इंक्रिप्शन आस पास एंड साथ देखेंगे हम कल। सो वी हैवंट टेकन द ब्रेक, तो हम इसको आज ही स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे। एंड मैं स्लाइड शेयर करूँगा, पर ये जो अभी पढ़ाया है ये कल रिवाइज जरूर करना। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस, सीडीएन से एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आस पास एंड सास के जो डेटा टाइप है उसमें क्वेश्चन बना के देखा कि यदि मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो डायरेक्ट नहीं किया सास से, they will ask the question this way that if I'm using a service, I don't need to develop anything, any code, anything. I just need to use the service and pay the user-based license. And what is storage type it will use. वहाँ पे इस तरह से बना के देगा। डेटाबेस भी ऑप्शन होगा, और वॉल्यूम स्टोरेज भी होगा, ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी होगा, और वहाँ पे सीडीएन भी होगा। तो उस तरह से देखना पड़ेगा।